Hi, my name is Hira Shaheen. Today, in this video, we are going to discuss a problem of simplex method in which we solve linear programming problem. So, what is simplex method? We have already discussed about this. So, if you haven't seen that video, please watch that video first, then come to this problem video. So, let's see an example. Here in this example, I have taken a problem of maximization. So this is maximization z is equal to 6x1 plus 5x2 and subject to these constraints x1 plus x2 less than equal to 5, 3x1 plus 2x2 less than equal to 12, and x1 and x2 greater than equal to 0 is non-negative constraints. So in the first, we'll start with the initial table of first iteration. In first iteration, before making iteration table, we add slack variables to make it standard form. So in the first constraint, we add, let's say we add S1 and we make this inequality to equal to, and another in we add S2. So we start with the problem and then we make its iteration table. Here we have added S1 and S2. Since S1 will be added in the first constraint, so its coefficient will be 1 in the first constraint, and the S2 is added in the second constraint, so S2 is added in the second row. I have already told in the last video how to make this structure of simplex method. In the first iteration, what we write here, x1 x2 means all the variables and all the slack variables here, and cj, here we write cj and coefficients of all the variables in the z equation, that is objective equation z. So x coefficient of x1 is 6, so it is here, it is 6. Coefficient of x2 is 5, so it is 5, and s1 and s2's coefficient in the objective function is always 0. And in the initial basic feasible solution, S1 and S2 are our basic variables. So we write S1 and S2 here in this column, basic variable, and we write coefficient of this basic variable in the objective function. In the objective function, its coefficients are 0. And here we write XB, that is solution. So in first solution, initial basic feasible solution was S1 is equal to 5 and S2 is equal to 12. So here it is written. And Zj, how we calculate this Zj? We write Cb into Xb. So Cb is into Xb, summation of Cb into Xb correspondingly row wise. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे Cb, यहाँ पे ये जो Cb फर्स्ट रो में इसकी वैल्यू है 0 और यहाँ इसकी वैल्यू है 1, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3. तो ये जब फर्स्ट इटरेशन में ये आपके हमेशा 0 होती है, तो ये जब आप सी बी इंटू एक्स बी करेंगे और उसका सम फाइंड आउट करेंगे तो ये सारे के सारे 0 ही रहेंगे जेड जे. ठीक है, तो आपका जेड जे माइनस सी जे अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेड जे माइनस सी जे कर रहे हैं. तो जेड जे माइनस सी जे कर रहे हैं, तो नीचे जेड जे आपका क्या 0 है और सी जे 6 है, तो ये आपका नेगेटिव 6 आ गया. यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे करेंगे तो 0 माइनस 5 आएगा. यहाँ जेड जे माइनस सी जे करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे करेंगे तो यहाँ 0 आएगा. तो जब हम जेड जे माइनस सी जे करते हैं तो हमारा कंडीशन होता है कि ये सारे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे अगर जेड जे माइनस सी जे, तो हमारा ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया. बट सिंस हियर वी हैव नॉट गॉट all zj minus cj greater than equal to 0, it means we have not reached our optimal solution. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करना होता है आपका पाइवट कॉलम. तो इसमें जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होंगी, zj माइनस cj निकाल रहे हैं मैक्सिमाइजेशन के केस में, तो हम सबसे जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी उसको देखेंगे. और यहीं पे अगर आप कहीं किसी बुक में या किसी जगह देखेंगे cj माइनस zj होगा,
तो हम उस केस में ये हमारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो हम लोग देखते हैं कि आपका सारा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, तब आपको ऑप्टिमल कंडीशन मिलेगा, मतलब रिवर्स, जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए ZJ माइनस CJ जब करेंगे मैक्सिमाइजेशन के केस में। तो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तो ये ऑप्टिमल कंडीशन हो जाए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। बट यहाँ पे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं मिले तो हमें पाइवट कॉलम फाइंड आउट करना है। पाइवट कॉलम आपको कैसे मिलेगा, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपकी मिलेगी ZJ माइनस CJ की, वो वाला जो कॉलम होगा वो आपका पाइवट कॉलम कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो XB वाला कॉलम है यानी कि ये सॉल्यूशन वाला, उसको हम पाइवट कॉलम वाले वैल्यूज से कॉरेस्पॉन्डिंगली रो वाइज डिवाइड करते हैं। तो 5 को क्या से डिवाइड करेंगे, ये वाले एलिमेंट से 1 से, और 12 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये आपका रेशियो निकल जाएगा। अब इन दो रेशियो में से हमको फाइंड आउट क्या करना होता है, मिनिमम रेशियो। तो ये आपका 5 है, ये 4 है, तो इनमें मिनिमम आपका 4 है। तो ये आपका जो रो हो गया ये पाइवट रो हो गया और ये पाइवट कॉलम हो गया। तो ये आपका जो है ये पाइवट कॉलम और ये आपका पाइवट रो। तो एनोटेट, तो ये आपका जो है ये पाइवट कॉलम और ये आपका पाइवट रो है, और ये आपका जो है ये आपका पाइवट एलिमेंट हो गया। तो नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे जो आपका पाइवट रो है उसकी जो बेसिक वेरिएबल एलिमेंट है S2, ये यहाँ से हट करके यहाँ पे क्या आएगा, X1 आ जाएगा। जो पाइवट कॉलम का वेरिएबल होता है वो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ बेसिक वेरिएबल में X1 इंक्लूड हो जाएगा, S2 यहाँ से हट जाएगा। तो अब नेक्स्ट इटरेशन में हम जाएंगे। से क्लियर माइंड, इसको क्लोज करें। तो नेगेटिव ZJ माइनस CJ आपको क्या दिया, -6 एंड इट्स कॉलम इंडेक्स इज 1, सो द एंटरिंग वेरिएबल इज X1। जो अभी मैंने बताया मिनिमम रेशियो आपने मिल गया, तो उससे आपको पाइवट एलिमेंट मिल गया। अब पाइवट एलिमेंट मिलने का क्या मतलब होता है कि पाइवट एलिमेंट को आपको नेक्स्ट इटरेशन में 1 बनाना होता है, और पाइवट एलिमेंट आपका यहाँ पे 3 था। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे रो को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एलिमेंट जो है 3 डिवाइडेड बाय 3 होने से ये 1 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0/3 0, 1/3 आ जाएगा इसका। तो हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में देखिए ये वाला रो देखिए, इसमें क्या किया, ये 2/3 हो गया, ये 0, ये 1/3 हो गया, और ये 4। और यहाँ देखिए ये जो पहला वाला रो है इसमें आपको क्या करना है, चूंकि ये आपका अब बेसिक वेरिएबल S1 और X1 है, तो S1 ये वाला कॉलम है और X1 ये है। तो आपको ध्यान ये देना है कि इसको तो 1 करना है, बाकी आपको 0 बनाने हैं। तो जो पहले इसमें जो ओल्ड एलिमेंट था R2 का, R2 न्यू में हम क्या ऐसा करें, जो आपका है ये नई वैल्यू इसकी R2 न्यू तो आपका हो गया, R1 न्यू, R1 न्यू में हम क्या करें, जो ये आपका R1 न्यू 0 बन जाए। तो R2 R1 जो ओल्ड था वो 1 था, R1 ओल्ड 1 था, और R2 न्यू आपका 1 हो चुका है। R2 न्यू आपका 1 हो चुका है, और R2 न्यू आपका 1 हो चुका है, और R1 ओल्ड आपका 1 था। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वही चीज लिखा है कि R1 न्यू में हम क्या करें, R1 ओल्ड माइनस R2 न्यू कर देंगे, तो हमारे जो R1 न्यू की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो देखिए ये आपका 0 हो गया, और ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ये पूरे रो के लिए करेंगे। तो R1 ओल्ड में क्या था आपका, यहाँ पे 5 था, और नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे आपका ये 4 है, तो 5 - 4 ये क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह से ये पूरा रो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या था,
यहाँ पे पहले 1 था और R2 न्यू आपका 0 है, तो 1 माइनस 0 आपका 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे R1 ओल्ड में क्या था, देखिए R1 ओल्ड में 0 था और R2 न्यू में आपका 1/3 था, तो जब 0 माइनस 1/3 करेंगे तो ये माइनस 1/3 हो जाएगा। इस तरह से ये हम पूरे रो को हम निकाल लेंगे। और यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि कोफिशिएंट जो है आपके सीबी वाले जो कॉलम है उसमें अब कोफिशिएंट आपका ये बेसिक वेरिएबल जो अपडेटेड बेसिक वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे। तो S1 का कोफिशिएंट तो Z के इक्वेशन में यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके 0 था। X1 का कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए X1 का कोफिशिएंट हमने यहाँ भी लिख रखा, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि X1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 हो गया। पिछले इटरेशन में यानी कि फर्स्ट इटरेशन में ये जो है आपका हमेशा 0 आता है, लेकिन ये जब नेक्स्ट इटरेशन में जाते हैं तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन कि अब आपका नया बेसिक वेरिएबल क्या है। तो अभी आपने बेसिक वेरिएबल के कॉलम में x1 आ गया, तो इसकी कोफिशिएंट 6 हो गए। अब इसके बेसिस पे आपकी zj की वैल्यू भी हर एक की चेंज हो जाएगी, पिछले इटरेशन से चेंज हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में क्या हो जाएगी, zj की वैल्यू 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, तो ये हो गया 6। इसको हम लोग अगर यहाँ ऐसे एनोटेट करके बताऊं, वेट, तो इस तरह से S1 और X1 दोनों ही रो हम लोग निकालने के बाद ZJ निकालते हैं, ZJ निकालने के बाद ZJ माइनस CJ निकालते हैं और फिर अगेन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ZJ माइनस CJ सारे जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुए या नहीं। अभी भी हमारे जो है सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुए क्योंकि -1 यहाँ पे आया है एक कॉलम में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं मिला और ये जो मोस्ट नेगेटिव नंबर आपका जिस कॉलम में होगा वो आपका पाइवट कॉलम कहलाएगा। और पाइवट कॉलम मिलने के बाद हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे XB बाई XK। XK यहाँ पे कौन सा कॉलम होगा, वो कॉलम जो पाइवट कॉलम होगा, XB बाई XK। तो यहाँ पे XK आपका X2 है, तो XB बाई X2 वाले को हम डिवाइड करके रेशियो फाइंड करेंगे दोनों रोज के। यहाँ पे 2 रोज हैं, तो पहले रो का हमारा जो XB बाई XK आया 1 डिवाइडेड बाई 1/3, ये क्या हो गया 3, और दूसरे का 4 डिवाइडेड बाई 2/3, ये हो गया 6। तो इन दोनों में मिनिमम आपका ये 3 हो गया। तो जो ये पहला वाला रो है ये आपका कहलाएगा पाइवट रो, और ये आपका जो X2 वाला कॉलम है ये कहलाएगा पाइवट कॉलम। तो ये क्या हो गया आपका, ये पाइवट कॉलम हो गया और ये आपका पाइवट रो हो गया, और ये आपके जो हो गए ये पाइवट एलिमेंट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट इटरेशन में जाना है और इस एलिमेंट को आपको 1/3 बना देना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, R1 वाले रो को अगर हम डिवाइड कर दें 1/3 से, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ये क्या है R1 ओल्ड, R1 ओल्ड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा R1 न्यू हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमें क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा। इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये तो आपका पूरा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस रो में जो जब आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो न्यू रो में ये जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर आपको ये नेक्स्ट टेबल में फ्रेश दिखाऊंगी। जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा। नेक्स्ट इटरेशन में ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका 3 नहीं होगा, ये आपका 1 हो जाएगा क्योंकि हमको इसको 1 बनाना होता है। और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा।
ये माइनस, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसको हमको चाहिए कि ये 0 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस वाले वैल्यू में से इसमें 2/3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये वैल्यू आपका, ये आपका 0 हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, R2 ओल्ड R1 न्यू, ये n जो है यहाँ पे न्यू इंडिकेट कर रहा है, इसमें अगर हम 2/3 मल्टीप्लाई कर दें, R1 न्यू क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। इसमें अगर हम 2/3 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ R2 ओल्ड क्या था, 2/3 था, तो 2/3 माइनस 1 इंटू 2/3 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी फाइनली 0 आ जाएगी नेक्स्ट इटरेशन में। तो ये हो जाएगा आपका 0। और जब यहाँ हम R2 ओल्ड आपका 0 था और न्यू आपका 3, यहाँ पे R1 न्यू 3 हो चुका है, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, सॉरी ये 3 है, 3 इंटू 2/3। तो 2/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आपका -2 आ जाएगा। इस तरह से हम सारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करती हूँ और नेक्स्ट अगर हम इसका आपको ये दिखाएं टेबल, तो ये आपका देखिए 0 और ये -2 आ गया। इस तरह से पूरे रो को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। और आपका बेसिक वेरिएबल में x2 और x1 हो चुका है, कोफिशिएंट्स आ गए, इसके x2 और x1 के कोफिशिएंट्स ये हो गए और ये आपका हो गया। उसी तरह से फिर जैसे पहले हमने zj निकाला था, zj निकाल लेंगे और zj माइनस cj निकाल लेंगे। और जब हम zj माइनस cj करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये सारे के सारे वैल्यूज आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुके हैं। zj माइनस cj निकाल रहे हैं, तो हमें zj माइनस cj वाले केस में मैक्सिमाइजेशन में हमें क्या देखना है कि ये सारे वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर आ गए तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो हमें अब नेक्स्ट इटरेशन में नहीं जाना है, हमें यहीं पे इसको एंड करना है। तो यहाँ हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है और ये z आपकी 27 आ गई है। ये कैसे निकालते हैं, 5 cb इंटू एक्स बी करते हैं। तो cb इंटू एक्स बी 5 3 जा 15 प्लस 6 इंटू 2, तो 15 प्लस 12 ये हो गया 27। और x2 की वैल्यू क्या होगी 3 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू।